رب العالمین والعاقبات للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیت عترتہ طیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی جن کا وہ ذکر خود کرتا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ میں نے سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلواتے ہیں، اور اہل علم لوگ کہتے ہیں کہ ان کے معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، لیکن اہل ذوق لوگوں کی اپنی ہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا آل محمد سے۔ اللہ نے فرمایا کہ آل محمد ایسی پاکیزہ کتاب ہیں جن میں کوئی شک نہیں اور کبھی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الفاظ پر غور رہے کہ متقین خود کو یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں، انہیں ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے پہلے بندے کا انسان ہونا ضروری ہے، انسان کے بعد مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے بعد متقی ہوتا ہے، پھر عبادت گزار ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، پھر جا کے مومن ہوتا ہے۔ اب وہ جو بندہ مسلمان ہونے کے بعد ہی کہہ دے کہ میں کامل انسان ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جسے اللہ نے منوانے کا حکم دیا ہے، ماننے کا حکم دیا ہے، اور جس طرح اللہ نے خود کو ماننے کا حکم دیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے محمد و آل محمد کو ماننے کا حکم دیا۔ کیونکہ اللہ نے واضح قرآن میں فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ صرف ان پر درود و سلام ہی نہیں بھیجنا، انہیں ماننا ہے، انہیں تسلیم کرنا ہے کہ یہ محمد و آل محمد ہیں۔ بات ہے نسبت کی۔ ایک نسبت وہ ہے جو بندے کو تمام تر بلندیاں لے کے جنت میں لے جاتی، اور ایک نسبت وہ ہے جو بندے کو لعنت کا مرتکب بنا دیتی۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، لیکن وہی تربیت کہ ایک تربیت کی عمران ابو طالب نے 2 بندوں کی، اور وہ بندہ خاص جن کی تربیت کی عمران ابو طالب نے، ایک محمد بنا تو ایک علی بنا، اور اس کے مقابلے میں 2 بندوں کی تربیت کی ابو سفیان نے، ایک معاویہ بنا ایک یزید بنا۔ یہ ہے تربیت۔ ہم سے گلہ کیا جاتا ہے کہ آپ عمران ابو طالب پہ درود و سلام بھیجتے ہیں،
तो क्यों ना भेजें, जिन्होंने हमें मोहम्मद वली दिए तो हम उन पे दरूद व सलाम क्यों ना भेजेंगे। एक वाक़या मशहूर आपने बहुत सुना है, बहुत जगह पढ़ा गया, राहब का वाक़या। बहुत सारे ज़ाकिरों ने, आलिमों ने पढ़ा, बहुत सारे शायरों ने इस पे शायरी भी की। तो मैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए ज़रा दोहराऊंगा दोबारा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईसाई मज़हब में जो लोग पादरी होते हैं वो कभी शादी नहीं करते, वो सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। इसी तरह मुसलमानों में जो लोग अल्लाह के दीन की खोज में अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं वो कलंदर कहलाते हैं। माशाअल्लाह, क्या बात। और इसी तरह यहूदियत में जो लोग राहब होते हैं वो कभी शादी नहीं करते। वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक राहब सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा आका मुझे बेटे चाहिए। आपने फरमाया तुम्हारी तो शादी नहीं हुई तो बेटे कैसे होंगे। वो खैर दरबार से मुड़ा तो आपने फरमाया बाहर मेरे नवासे खेल रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्या बात। बाहर हसनैन करीमैन खेल रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब वो बंदा बाहर आके रोता हुआ बाहर आ रहा है, रोता हुआ माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उन मानी में नहीं है कि वो नाकामयाब हुआ, ये नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसके जो इख्तियार में है, जिसने जो जिम्मेदारी निभानी है उसने ही वो जिम्मेदारी निभानी है। मैं ये सिर्फ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बच्चों के जहन में ये सारी बातें रहें। तो अब हसनैन करीमैन ने पूछा कि हमारे नाना के दरबार से आ रहे हो, तो ऐसे मुंह लटकाए। उसने कहा जी बेटे लेने गया था तो सरकार ने फरमा दिया है कि मैंने तो शादी नहीं की। आपने फरमाया अच्छा, तो ये कौन सा बड़ा काम है जो तूने हमारे नाना से कहा, हमें बता के जाता तो हम यहीं तुझे दे देते। क्या बात। अब अल्लाह अर्श पे बैठा देख रहा है, उसके फरिश्ते देख रहे हैं, मैं इख्तियारात की बात करने लगा हूँ। माशाअल्लाह। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा एक, तो अल्लाह ने फौरन कहा कुन। और बच्चा जमीन पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा दो, अल्लाह ने कहा कुन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा तीन, अल्लाह ने कहा कुन, हो जा। अभी 7 पर पहुंचे थे, उस राहब ने हाथ बांध दी कि आका मैं तो यही लेने आया था जो आपने मुझे दे दिए। फरिश्ते हैरान हैं कि अल्लाह ये क्या। फरमाया कि मेरे हसन और हुसैन ने मुझसे मांगा ही कभी क्या है, आज जो मांगा है तो मैंने अता कर दिया। मैं तो उनके मांगने के इंतजार में रहता हूँ कि कभी वो मुझसे कुछ मांगे। क्यों कि मैंने उनके नाना के लिए कहा है वाला सोफ़ा युती का रब्बू का फतरदा। अब इन्हें अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, इन्नहु कुरानुन करीम ज़ालिका किताबुम मुबीन। अब इन्हें ही कहा गया कि ये एक छुपी हुई किताब है, ये तय्यब व ताहिर छुपी हुई किताब है। सलमान फारसी तशरीफ़ फरमा है, कभी भी इन लोगों के लिए ग़ुलाम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालिकों ने इतनी इज्जत दी है कि हम कौन होते हैं उन्हें ये कहने वाले। तो सलमान ने नबी तशरीफ़ फरमाए तो 2 जय्यद सहाबा ने आके कहा कि सलमान बड़ा अली अली करता है, हमने आज जो ये आयत सुनी है हमें समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कौन सी आयत सुन ली आज आपने। इन्नहु कुरानुन करीम
ज़ालिका किताब मकनून, कि ये कुरान है, पाक कुरान है, और इस कुरान के अंदर एक छुपी किताब है। ये क्या बात हुई? उसने कहा अच्छा अब बताओ कि दिखा दूं या पढ़ा दूं, दिखा दूं या बता दूं? यार कैसी बातें करते हो कि हमने तो कहा था कि सिर्फ बता दो कि ये क्या किताब में, किताब के अंदर छुपी किताब कौन सी? उसने कहा आओ। वो लेकर तेरे बतूल पे आ गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। शायद जिस्मानी तौर पर तो आप यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो आपका जज्बा शौक नज़र नहीं आ रहा जो होना चाहिए। खैर दरूद पाक पढ़िए। दरे बतूल पे लेके आ गए सलमान। कहा यहाँ सर झुका दो। कहा ये तो अली अलैहिस्सलाम का घर है, यहाँ के क्यों ले आए हो? कहा कुरान को खोलो तो क्या नजर आती हैं? उन्होंने कहा आयात। तो यहाँ हर बंदा आयत। क्या बात, माशाअल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहा ये आयतुल्लाह नहीं है, अल्लाह की निशानी नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहा ये आयत नहीं है। उन्होंने हाथ बांध के कह दिया कि तेरी तू ही जानता है, ये तेरा अल्लाह जानता है, ये तेरा अली जानता है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह जब भी ये ऐसे जिक्र हैं कि वो शायर ने बड़ा खूब लिखा है कि तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, जिंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए। तो आज की ये मजलिस खसूस बिलखसूस वाक़े करबला के बाद जो हालात, जिन हालात का सामना सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सैयद सज्जाद ने किया, हमने पूरा मुहर्रम बल्कि ये सफ़र के 20 दिन भी उसी हाल में गुजारे। अब जो मेरे ज़िम्मे लगाया गया कि जी जब वहाँ से यजीद मलून की कैद से जब रिहाई हुई और ये लुटा पुटा काफिला अब जो चंद नफूस पे मुश्तमिल था, जैसे ही मदीना पहुंचा तो हर तरफ आहो बका, नूहा, सलाम। और अब सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि दीन को जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अली अलैहिस्सलाम ने, इंतन पाक ने इन लोगों तक पहुंचाया और जो जुल्म सितम इन लोगों ने उसके बदले में दिए, उनका प्रचार किस तरह किया जाए। अब ना तो दिन को सुकून है ना रात को चैन, हर तरफ हर वक्त खून रोती आंखें हैं इमाम सज्जाद की। इमाम सज्जाद ने अपनी ज़िंदगी, जो बकिया ज़िंदगी थी 30 साल की तकरीबन, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजार दी और तमाम तर जिम्मेदारियाँ अपने बेटे हज़रत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को सौंप। उधर बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने उसी कुरान को लोगों को पढ़ाने सिखाने में गुजारा, क्योंकि अब उनके पास काम ही सिर्फ ये रह गया था कि ये जो दुश्मनाने मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, अभी शायद ये समझ जाएं कि इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद, इतने बड़े वाक़या के बाद इस्लाम बाकी रह जाए। आज 1400 साल बाद भी इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही फितना अंगेजियाँ, वही
लोगों की बातें, वही मोहम्मद व आले मोहम्मद की बुग़्ज़ दोबारा शुरू हो चुका है। बड़ा इंतहाई ख़तरनाक तरीन वक्त है। खुदारा खुद को भी संभालो और कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम न करो जिससे हमारी आने वाली नस्लों को ये तक ना पता रहे कि हमारे आबा व अजदाद के साथ दुश्मनान इस्लाम ने क्या क्या जुल्म किए। हर जगह तबलीग का दामन कभी भी अपने हाथ से ना छोड़ना। बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि दीन बहुत मुश्किल से हम तक पहुंचा है, इसे मजबूती से थाम लेना है और वो रास्ता जो इबादत का रास्ता, अल्लाह की रज़ा का रास्ता हमें करबला में मोहम्मद व आले मोहम्मद ने दिया है, सैयदुश शुहदा ने दिया है, उनके साथियों ने, उनके बच्चों ने दिया है, उसको मजबूती से थाम लेना है और कभी और हर हाल में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना है और उन लोगों के साथ जो बुग़्ज़ अली अलैहिस्सलाम रखते हैं। सारा फितना उसकी जड़ यही है कि जिस तरह अबू सुफियान के घर वालों को अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ था, उनकी नस्लें आज भी हैं। तो कभी भी अपना दीन बचा के रखो, किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हक बयान करना और हक पर कायम रहना यही सबसे ज़रूरी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मोहम्मद व आले मोहम्मद।